فوجی عدالتوں سے ثانیہ 9 مئی کے 25 ملزمان کو سزائیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے مجرموں کو 2 تا 10 سال قید بامشقت کی سزائیں سنائیں۔ ISPR کے مطابق جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث 11 مجرموں کو سزائیں سنائی گئی۔ پنجاب رجمنٹل سینٹر مردان حملہ کیس میں 5 مجرموں کو سزائیں۔ PF بیس میاں والی حملہ کیس میں 2 اور بنو کینٹ حملہ کیس میں 1 مجرم کو سزا۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملہ اور GHQ حملہ کیس میں 2 مجرموں کو سزا سنائی۔ ISI آفس فیصل آباد اور چکترا قلعہ حملے کیس میں بھی 1 مجرم کو سزا سنائی گئی۔ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کے بعد سنائی گئی۔ ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم دیا تھا۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ ثانیہ 9 مئی کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی۔ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے شدید صدمہ ہیں۔ ثانیہ 9 مئی تاریخ میں سے آباد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ملوث جان محمد خان، عمران محبوب، عبدالہادی، علی افتخار کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ علی شان، داؤد خان، علی افتخار اور ضیاء الرحمان بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا کاٹنا ہوگی۔ مجرم محمد حاشر خان اور فہیم حیدر کو 6 سال قید بامشقت، محمد عاشق خان کو 4 سال قید بامشقت کی سزا۔ پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان حملے میں ملوث مجرمان رحمت اللہ، عدنان احمد، شاکر اللہ کو بھی 10 سال قید بامشقت۔ سعید عالم، یاسر نواز 2 سال قید بامشقت بھگتیں گے۔ GHQ حملے میں ملوث راجہ محمد احسان اور عمر فاروق کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث انور خان اور بابر جمال کو بھی 10 سال قید بامشقت۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث زاہد خان کو 4 سال، خرم شہزاد کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث محمد آفاق خان کو 9 سال قید بامشقت، چکدرا قلعہ حملے میں ملوث داؤد خان کو 7 سال قید بامشقت کی سزا۔ ISI آفس فیصل آباد حملے میں ملوث۔ صحیح معنوں میں مکمل انصاف اس وقت ہوگا جب 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا ملے گی۔ ISPR نے واضح کر دیا، ISPR کے مطابق کسی کو بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 9 مئی کے واقعات میں مکمل انصاف مہیا کر کے ریاستی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا۔ تشدد کی بنیاد پر کی جانے والی گمراہ اور تباہ کن سیاست کو دفن کیا جائے گا۔ 9 مئی کی سزاؤں کا فیصلہ قوم کے لیے انصاف کی فراہمی میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو چند مفاد پرستوں کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ سزائیں تنبیہ ہیں، مستقبل میں کبھی قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ ہاؤس کی طرف آ گئے تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں، وہاں پر اجاز چودھری اور یاسمین راشد ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر ہے اس کی طرف گھس جاؤ۔ شیر شاہ نیازی اسی بھی چلے گئے، اتنے سارے گئے اندر، سارے ورکر اندر جا رہے تھے، میرے ہاتھ بھی ڈنڈا سی، میں اندر گیا، ٹیبل لیمپ جی چیز میرے کو ٹوٹی میں توڑی ہے۔ جناح ہاؤس میں ملٹری یونیفارم پہن کر ویڈیو بنائی اور پھر شرٹ کو جلا دیا۔ مجرم جان محمد خان کا اعتراف۔ مجرم علی شان نے کہا سیاسی رہنماؤں کے ورغلانے پر جناح ہاؤس میں جا کر توڑ پھوڑ کی۔ مجرم بابر جمال خان نے کہا میاں والی بیس پر حملے میں ملوث تھا اور میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ مجرم داؤد خان نے اقرار کیا کہ اس نے یاسمین راشد اور حسان نیازی کے اکسانے پر جناح ہاؤس پر حملہ کیا۔ تقاریر کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی گئی۔ مجرم محمد حاشر نے اعتراف کیا جناح ہاؤس پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پارک میں یاسمین راشد کی قیادت میں کی گئی۔ مجرم محمد عاشق خان نے انکشاف کیا کہ زمان پارک میں فوج کے خلاف حملے کے لیے ٹریننگ ملتی رہی۔ PTI کے زیر حراست افراد کو سنائی گئی سزائیں انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر رد عمل، کہا فوجی عدالت سے سویلینز کے خلاف سزاؤں کو مسترد کرتے ہیں۔ رہنما PTI اسد قیصر کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
इन ट्रायल्स में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। हम फैसलों की मजम्मत करते हैं, हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया। अदालतें कॉम्प्रोमाइज हों तो मुल्क में मायूसी बढ़ेगी। हम इंसाफ के हसूल के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि फौजी अदालतों से सजाओं के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हफ्ते के रोज तक मुज़ाकरात न हुए तो सिविल नाफरमानी की कॉल नाफिज हो जाएगी। 9 मई के मंसूबा साजों पर हाथ न डाला तो उनके हौसले बढ़ते रहेंगे। सानेहा 9 मई के 25 मुलजिमों को आज सजाएं सुनाई गईं। होना तो ये चाहिए था, अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम लिखा, इंसाफ में ताखीर ने मुलजिमों और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वाज़ेह हो गया 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीचाई था। मई के तमाम मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सियासी इख्तिलाफ दलील के साथ होता है, तशद्दुद के साथ नहीं। फौजी तंसीबात पर हमले करने की सियासी दहशतगर्दी पहले कभी नहीं हुई थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा, सानेहा 9 मई केसेस में इंसाफ होता नजर आना चाहिए। जिनकी वजह से 9 मई हुआ वो नौजवानों को आगे करके पीछे हट गए। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले बर्दाश्त है। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में 6 माह की तौसी कर दी। जुडिशल कमीशन का रूल्स से मुतल्लिक इजलास खत्म, रूल्स की मंजूरी दे दी गई। कुछ रूल्स में मामूली तब्दीली, जराए का कहना है नए एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद होगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 और सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजमी होगा। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को लिखा कि आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जस्टिस मंसूर ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दे दी। जजेस की तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट्स लेने की मुखालफत। खत में मजीद लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जेक्टिव की है, पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। हुकूमत ने इत्तेहादे तंजीमात मदारिस के तमाम मुतालबात मान लिए। ब्रेक थ्रू मौलाना फजलुर रहमान की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की मदारिस के रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास किए गए मुसवदे पर नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब फजलुर रहमान की बानी पीछा से मुलाकात की खबरों की तरदीद। कहा, बानी से मुलाकात का ना पैगाम मिला है ना ऐसी कोई बात अब तक ज़ेरे गौर है। अगर मुलाकात का कोई पैगाम आया तो सोच समझकर और फायदा नुकसान देखकर फैसला किया जाएगा कि मुलाकात करनी भी है या नहीं। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइल्मी पर मबनी हैं। बगैर सबूत हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआवनत साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपने दिफाई सलाहियत के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने कभी किसी भी शक्ल में अमरीका के लिए बुरे इरादे का मुजाहरा नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल मुकाम पर होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। भारत अपने तीनों पोल मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर एक सेमीफाइनल न्यूट्रल वेन्यू पर, बसूरत दीगर दोनों सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में होंगे। भारत के फाइनल में पहुंचने पर मैच 9 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। ज़ैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज, राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई।
मुकदमे में मजमूई तौर पर 116 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत हो चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समात अडियाला में की। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में 13 जनवरी तक पूरी जमानत मंजूर। साबिक खातून अव्वल ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश। मजीद 10 मुकदमात में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी दायर कर दी। अदालत के तमाम मुकदमात में तफ्तीशी अफसरों को नोटिस, आइंदा समात पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। उधर बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 केस पर समात। प्रोसिक्यूशन के पहले 2 गवाहों के बयानात कलमबंद, जराह भी मुकम्मल। इस्तिगासा अगली समात पर मजीद 2 गवाहों आहद और बिनियामीन के बयानात कलमबंद करवाएगा। समात 26 दिसंबर तक मुलतवी। अगले 3 से 4 माह बानी पीटीआई पक्के जेल में रहेंगे। बानी पीटीआई को पूरा यकीन है कि उन्हें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा दी जाएगी। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी पीटीआई कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एक अहमकाना केस है। बानी पीटीआई के 2 मुतालबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। 2 मुतालबात मानते हैं तो एतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। स्पीकर ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी, मुज़ाकरात ही होंगे। पारा चिनार में मामूलात ज़िंदगी मुकम्मल बहाल न हो सके। जल पारा चिनार मेन रोड 74वें रोज़ भी आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। होटल्स, तंदूर समेत सैकड़ों दुकानों को ताले लग गए। रोड की बंदिश के खिलाफ शदीद सर्दी में मकामी शहरियों का प्रेस क्लब के सामने धरना। मुजाहिरीन का कहना है रास्तों की बंदिश से इंतहाई मुश्किलात का सामना है। अशिया ज़रूरिया का फुकतान है। मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया। पारा चिनार में अशिया खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी, LPG मुकम्मल ख़त्म हो चुकी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं पेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कुरम को असलहे से पाक किया जाएगा। पायदार अमन के लिए ज़िले में बंकर्स को गिराने को यकीनी बनाया जाएगा। रास्तों की बंदिश के बायस दरपेश अवामी मसाइल के इदराक है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो जाएंगे। कुरम में क़याम अमन के लिए अहम फैसले किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन की आबियाबी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कुरम एजेंसी इशू पर किसी भी सियासी जमात या ग्रुप को सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत हसास मामला है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सियासी अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब पंजाब से कुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खेप भी रवाना। वज़ीर आला मरियम नवाज का अद्वियात और ज़रूरी सामान के मजीद 5 ट्रक भेजने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के आवाम मुश्किल में हैं। दुआ है कि हालात जल्द नॉर्मल हों और ज़िंदगी अपनी मामूलात के मुताबिक लौट आए। ऑनलाइन क्लासेस से वाबस्ता हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। इससे हर बंदे का जो है वो बिजनेस जो है वो मुतासिर हो रहा है। असाइनमेंट हमारी सारी ऑनलाइन होती हैं, पोर्टल पे अपलोड करनी होती है, तो इंटरनेट इतना स्लो होता है कि वो अपलोड ही नहीं हो पाती और जो डेडलाइन है वो गुजर जाती है। इंटरनेट पे जो सारा हमारा कारोबार चल रहा है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। जब भी हम अपने क्लाइंट्स को रीच करते हैं, उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, तो हमें ड्यूरिंग कॉल इंटरप्शन पेश आती है। कॉल जो वो कट ऑफ हो जाती है। और मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से ऑनलाइन कारोबार से वाबस्ता तबका परेशान। VPN पर पाबंदी IT सेक्टर, कारोबार और तालीमी शोबों पर भारी पड़ गई। लाइव स्ट्रीम लोड ना होने से CCTV कैमरा इंस्टॉलेशन का कारोबार भी मुतासिर हो गया। व्लॉग बनाने वाले नौजवान भी इंटरनेट की कम स्पीड से सर पकड़कर बैठ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि वीडियोस अपलोड करने में शदीद मुश्किलात आ रही हैं। PTA ने दावा किया है कि रवा साल मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 28% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन गुजरात से खिताब। कहा, पावर शेयरिंग की कमेटी काफ़ी देर से खेल रहे हैं। नून लीग से इत्तेहाद मजबूरी का है, मोहब्बत का नहीं। पंजाब के हुक्मरान किसानों को माफिया कह रहे हैं। अगर किसान माफिया कहने वालों का साथ दें तो उनका अल्लाह हाफिज है। इत्तेहादी हुकूमत में ज़रूर हैं, पर होंठों पर ताला और हाथ नहीं बंधे हुए। जहां ज्यादती होगी बोलेंगे। अब हमें तस्लीम करें, हम आपको तस्लीम करेंगे। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की महाजर कल्चर डे पर सबको शिरकत की दावत। कहा, हमें आज़ादी मिली लेकिन हमने इस आज़ादी की कदर नहीं की। यह तस्लीम करना होगा कि सब बराबर के हकदार हैं।
तब्दीली दावों और नारों से नहीं आएगी। फारूक सत्तार ने कहा, मुहाजिर कल्चर बानियान पाकिस्तान की सकाफत है। कराची मुख्तलिफ सकाफतों का मस्कन है। एक वक्त आएगा कराची की सकाफत तमाम सकाफतों का इम्तजाज होगी। कराची में गैस है ना पानी, पानी की बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। मुख्तलिफ इलाकों में मकीन सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर रोककर उनके वॉल भी खोल दिए। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। बर्न्स रोड, फ्रेस्को चौक पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। मोहन्नम जफर ने कहा कि शहर के 50% इलाके 15 रोज से पानी से महरूम हैं। सिंध हुकूमत शहरियों को पानी देने के लिए तैयार नहीं। के इलेक्ट्रिक और गैस वाले इन्होंने इतना नाक में दम किया हुआ है। सर्दी का जमाना है, कहाँ से आग जलाए, कहाँ से बच्चों को खाना खिलाए। गैस तो आती नहीं ना, सुबह आप बच्चों को अपने स्कूल भेजना होता है, ठीक है, सिलेंडर भरवा के फिर बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मुल्क भर में गैस की गैर एलानिया बंदिश, शहर शहर लोग महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर। लाहौर में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आए रोज गैस की कीमतों में इजाफे के बावजूद लोड शेडिंग और कम प्रेशर की शिकायत। सूबाई दारुल हुकूमत के कई इलाकों में दिन भर गैस गायब रहना मामूल बन गया। उधर MQM पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली का कराची में गैस की मसनूई क़िल्लत और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। गैस फराहम करने वाले इदारा गैस की मुनसिफाना फराहमी और भारी बिलों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। अरकान कौमी असम्बली का मुतालबा, कहा कंपनी बुनियादी ज़रूरत की मुनसिफाना तकसीम में बुरी तरह नाकाम है। गरीब परवर शहर में गरीब तबका ही सबसे ज्यादा मसाइल का शिकार है। पाक बहरिया के जहाज PNS मोहवन का मशरकी अफ्रीका में तैनाती के दौरान अफ्रीकी मुल्क सेशल्स का दौरा। बंदरगाह विक्टोरिया आमद पर PNS मोहवन का पुरतपाक इस्तकबाल। कमांडिंग ऑफिसर PNS मोहवन की सेशल्स के आला सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सेशल्स के माबैन मौजूदा ताल्लुकात और ताउन को मजीद बढ़ाने के मौके पर तबादला ख्याल। PNS मोहवन के मशरकी अफ्रीका के दौरा से पाकिस्तान और अफ्रीकी ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजीद तक़वियत मिलेगी। और वफाकी काबीना में तोसी का मामला ताखीर का शिकार, इत्तेहादी जमातों की मजीद वजारतों की डिमांड। वज़ीर आज़म की माजरत, ऑन चौधरी की शमूलियत पर रजामंदी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी काबीना में शामिल होंगे। बाजोड़ से मुबारक ज़ेब और विहाड़ी से औरंगज़ेब खिची मजबूत उम्मीदवार। MQM, काफली गौर BAP वजारतों की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म BAP को एक वजारत देने पर राजी। काबीना में ताखीर की वजह शरीफ खानदान की ज़ाती मसरूफियात। नवाज शरीफ के पोते की शादी 24 और 25 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शादी में शरीक होंगे। काबीना में तौसी जनवरी के पहले हफ्ते होने का इम्कान।